तो seismic body waves are generally P wave and S wave, and this surface wave we have already talked. P wave is a body wave, where the S wave is surface wave. So what are the mode of the transmission of the P wave? It's generally a longitudinal wave in nature. That means it travel in the forms of compression and rarefaction. And it is travel through the body of the rock masses. And the next wave is the S wave. It is also called shear wave propagation. Its nature is shear wave propagation, and the nature is transverse wave nature. So the nature of the transmission of the particle during the course, like x-axis here, here x-axis, minus x-axis. If the nature of any particle moving or during the transmission, so such type of wave are called longitudinal wave. And if traveling along, if सिंगल पार्टिकल ड्यूरिंग द कोर्स, इफ अब क्या होता है कि जब वेव ट्रांसफर होता है तो होल पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर जस्ट प्रोपोगेटेड मीन्स ये एनर्जी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को करता है और सामने वाला पार्टिकल को ट्रांसफर करता है. इट इज प्रोपोगेटेड बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी. तो इस केस में क्या होता है, इट इज ट्रेवलिंग इन प्लस एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन डाउन. सो दिस इज द नेचर, एंड दिस टाइप ऑफ द नेचर यदि होता है किसी का, दिस आर कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव. Transverse wave. Okay. So see, I have already talked in this slide. First is the P wave. It is traveling in the forms of compression and rarefaction. This is and this is. So this is the another pictorial representation of S S wave. Here, see in the first cases, the above portion up to this layer, up to this section, these are the surface wave, and after this we get body wave, or it's called P wave. और यहाँ से ये compression and rarefaction, और surface wave आपका generally surface से travel करते हैं. And this and the third wave, we have third wave is Rayleigh wave. Rayleigh wave means it is transmitted in the form of upwelling and downwelling. Upwelling and downwelling, or downwelling. जब ये vibrations of the energy which is transmitted from downward to upward, that's called upwelling, and if it's traveling from upward to downward, that's called downwelling. तो इस नेचर जब ये इस टाइप का दोनों लेयर के बीच में, बिटवीन द सरफेस वेव एंड बॉडी वेव के बीच में ये लेयर एग्जिस्ट होता है, एंड दे आर सर्कुलेटेड इन दिस टाइप ऑफ द वेव कॉल्ड रेली वेव. ओके. So can move through a solid rocks and fluid. Have you studied about the study of interior nature of the earth surfaces? See how the geologist tried to study about the interior surface of the earth. Have you studied in the geology? आप जब जियोलॉजी पढ़ोगे तो शायद पढ़ाया गया होगा कि how they have postulated that the most interior part is core which is generally solid in nature, then in outer core magma, and all like this, mantle and crust. So if you have studied then good, and not then go and study that. इसमें क्या होता है, उन्होंने इस पी वेव और एस वेव के हेल्प से ही उन्होंने पोस्टुलेट किया था कि व्हाट इज द रियल, मतलब जस्ट रियल, मतलब जहां तक उन्होंने कोशिश किया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द अर्थ. So this is the property. P wave can move through a solid rock and fluid, like water liquid layer of the earth. But what happened? What happened to the S wave? It can't. It can. So it cannot travel with the liquid phase. So let's see, go and study the nature of interior behavior of the surface. It pushes and pulls the rock, moves through like a sound waves, push and pull. P wave is also known as the longitudinal or compression wave, because they are pushing and the pulling force, that is the compression and rarefaction. And P waves makes the particle to move in the direction of wave propagation. So it's generally frequency from 15 Hz to 100 Hz body wave. It's only a theoretical part of view.
सो प्रीवियस क्लास मैं फिर से आपके लिए वो सेक्शन को फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ. See, suppose this is a rock or the surface or body surface, and if you are applying the sigma x, and that's a delta v according to the subsection area A, then on the differentiation on if we go for that particle, then we get delta x is equal to partial differential sigma x with the respect of x into delta x. So this much of energy will be gained during the process. Energy was the stress will be the gain during the process if we are there traveling from plus x-axis to plus x-axis. Then what we say? What will be the net stress? Net stress will be this minus this 1 minus 2. So what will you get? That is delta x. Okay. Write it down. It's the first one. Now you know the mass equal to density into volume. So how can we for volume can be written? A into delta x. Area into delta x, that is the volume, and rho is the density. Force is equal to mass into acceleration. So we know from this the mass equal to rho A into delta x equal to what? If the particle, in this nature, if the particle is in the previous in the particle, what is the velocity? First is what is the velocity? Velocity is equal to dy by dt. Then acceleration is equal to d square y by d. Okay. In the case of electromagnetic waves, like electron or the wave nature particles, if you are taking it in this type of nature, that is called the transverse nature, then it's traveling along the x-axis to minus y-axis. So that's why it's velocity dy by dt. Then acceleration is equal to d square dt square. So you can write force is equal to rho a delta x d square y by dt square. Write it 2. Okay. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. I hope not. Then from this state will be the force sigma x into A. Is it so? So new stress, that force equal to new stress. You can say new stress into A. आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? रो A delta x d square. Delta x will be cancelled out, and it is multiplied with, that is this one. Then you get d square y by dt square equal to 1 by rho partial differentiation of sigma x. ये आपका इक्वेशन आ गया. सिग्निफिकेंस क्या है ये हम लोग कुछ देर में देखते हैं. Let it be.
Have you written up to that section? If it is traveling along the body mass, and you have already considered the surface of rock is chilly, that is continuous, homogeneous, and linear elastic isotropic, then that case we can say sigma x is equal to E into epsilon x. That means it's the modulus of elasticity. This is strain and this is stress. So this is the Hooke's law. From Hooke's law, differentiate it with respect to x. Then you get this. Okay. So if the particle is traveling along the y direction, then the stress must be that strain is delta L by L. Then it can as dx by x. So Ex is equal to dy by dx. एंड आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दो, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? दैट इज dy by dx स्क्वायर. ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जा रहा है. So you got this as a B. Right, this equation is A. This is A. Okay, and this is B. On equating this one, on equating this equation, so how much you get? You know, d square y by dt square equal to 1 by rho d by dx. तो आप इस जगह पे, इस इक्वेशन पे आप इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो आपको क्या मिलता है? डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू ई बाय रो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. दिस विल बी आवर फाइनल इक्वेशन. तो मैंने कल जो बात किया था, इसमें से कुछ इक्वेशन फैमिलियर आपको लग रहा है? हैव यू गॉन थ्रू दैट फॉर्मूला? What is postulated by Maxwell that time? Yes, sir. Electromagnetic wave formula. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्मूला से आपको क्या मिला था कि इफ एनी पार्टिकल, यदि कोई भी पार्टिकल, सी इफ एनी पार्टिकल, आई नॉट वांट टू प्रूव दैट इक्वेशन, इट मे बी टेक लॉन्ग टाइम. सो डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बाय एक्स स्क्वायर. जहां भी ये इक्वेशन आपको दिखता है, तो जस्ट टेल दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव. ठीक है, ये वेव का इक्वेशन है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव. बट वेयर इफ इक्वल टू सी, दैट मीन्स इफ द पार्टिकल वेलोसिटी इज रिप्लेस्ड विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट डी स्क्वायर t square is equal to c square d square y by dx square, then this general equation is called the equation of electromagnetic wave. और यही से पहली बार दुनिया को थियोरिटिकली पता चला था. उन्होंने थियोरिटिकली इस इक्वेशन से बताया कि देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेव दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which is traveling with the speed of the light, and this is the general equation. ठीक है, तो अब जब फिर आप रॉक प्रॉपर्टी के साथ जब फॉलो कर रहे थे, एंड इफ यू फॉलो दिस प्रॉपर्टी, तो सी property or the same equation you can derive in the case of the rock when the wave traveling through the rock mass. That's d square y by dt square is equal to E by rho d square by dx square. ये दोनों it's 1 and it's अब 1 और 2 को इक्वेट करते हो, try to equate 1 and 2, what you get? You get v square is equal to E by rho. ठीक है, on comparison we get v square is equal to E by rho, that means v equal to E by under root E by rho,
and this is a very important equation you got. This one. And this is called velocity of wave propagation. This is the v is the velocity of material wave matlab particle wave velocity. This is particle wave velocity. So where is modulus of elasticity, and rho is the density. You know density. So if आपसे कभी भी कोई पूछे कि what are the parameter which define the speed or the particle velocity of a wave through a rock any material, then you say it's the two properties, that one is the modulus of elasticity of that material and another is the rho. ठीक है. ये इक्वेशन काफी हद तक सिमिलर मिलता है, सिमिलर होता है. आपने यदि जब फिजिक्स में स्टार्टिंग में जब आपने ऑप्टिकल फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया होगा तब एक ईथर का, एनीवन? Okay, no one. So this resemble with same. Okay. Have you written up to that section? Am I audible? Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ गई? If you have written up to that section, then write a new topic. That's a primary wave. So, as you have already talked, P wave in the rock sample depend upon the elastic properties, that E and V, and density, E and V, that's and density. This is called modulus of here V is the Poisson's ratio. Write it down. This here V is the Poisson's ratio. So write this equation for primary. Have you noted down this equation? Hello. Yes, sir. Then you have seen the equation Vp is under root E 1 minus mu rho plus mu by minus 2. So here you have already, it is Poisson's ratio. Write down.
Vs equal to, for the secondary wave velocity, write this equation. For S wave, S is secondary wave or sometimes surface wave. Surface wave. If you have written this equation, then you get, I hope you have written by rho into 2 1 plus mu. Can anyone rewrite formula in the term of G? G. You have written E, G or K. So if you this equation in the form of G, can anyone? Can anyone? I have Sir, already root taught G you by the rho. relationship between E, G and it's Sir, G G by by root rho. G by rho. Okay. Good. Good Aryan Akash. It's G by rho. E टू 1 प्लस ये होता है। तो ऐसे आपको इस टाइप से क्वेश्चन, कभी आपको ये क्वेश्चन पता है पर कभी कभी क्या होता है कि आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह वो नहीं दिया हो, उसके जगह आपको जी दे दिया गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो आप क्वेश्चन छोड़ के थोड़ी ना आ जाओ। यू मस्ट रिमेंबर दिस रिलेशनशिप, ये आपको यार हमेशा रिलेशनशिप ये दिमाग में रहना चाहिए, ई जी और के बीच में। सो राइट वन नोट वन थिंग। आपसे जब भी अब गेट के एग्जाम में जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आपका म्यू के टर्म पे है, सपोज कर पॉइजन्स रेशियो का टर्म जनरली इन द केस ऑफ रॉक, जनरली इन केस ऑफ रॉक वो 0.25 के करीब होता है। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 0.2 या 1 से करके वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 तक जाता है। 4 0.5 का रेंज में जा रहा है। आपसे कभी भी जब आप गेट में क्या होता है, आप जब कभी भी पॉइजन्स रेशियो निकालो और आपका आ जा रहा है 1.2 2 पॉइंट समथिंग, तो आप समझ जाओ वहां पे गलत है। इन केस ऑफ रॉक वहां पे गलत है, क्या है कि मोस्ट ऑफ द रॉक इन द नेचर जिसका पॉइजन्स रेशियो नियरली 0.5, मतलब एवरेज मान के चलो तो वो 0.25 पे कर पाता है, और ज्यादा से ज्यादा वो 1 तक, 1 या 1 से नीचे ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं जाने वाला। 1 से तो ऊपर नहीं है। इन दिस केस इट्स फेल, वो फेल कर जाता है। ठीक है। तो आप जब भी आपसे पॉइजन से निकाले पूछे तो आप हमेशा याद रखना कि वो हमेशा इसी के टर्म पे जाएगा, 0.25 के ऑन एन एवरेज आमने सामने आएगा। यदि वो रियल लाइफ सिनेरियो से पूछता है तो इन 90% ऑफ केसेस, in 90% of cases it's seen that mu 0.15 to 0.4 in 90% of cases, मतलब 90% ऑफ रॉक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। उस केस में ये देखा गया है कि जो मेरा पॉइजन रेशियो है वो 0.15 से 0.4 तक डेविएट करता है। इसका एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, यू हैव लर्न। तो सी फ्रॉम दिस इक्वेशन कैलकुलेट vp स्क्वायर बाय vs स्क्वायर। दिस इज vp and this is vs. Calculate how much you got. Vp स्क्वायर बाय vs स्क्वायर मीन्स प्राइमरी वेव वेलोसिटी का स्क्वायर करके vs स्क्वायर। स्क्वायर करने के पीछे रीजन क्या है कि स्क्वायर करते के साथ ये मेरा रूट निकल जाएगा और हमें इसके साथ कैलकुलेट ज़्यादा ईजी हो जाए। तो दैट्स व्हाई यू हैव स्क्वायरिंग बाय एंड डिवाइडिंग। सो ऑन स्क्वायरिंग एंड डिवाइडिंग यू गेट 2 1 माइनस म्यू बाय 1 माइनस 2, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है।
ओके, कैन कैन एनीवन, आप इसमें क्या है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कैन एनीवन टिल द पॉइजन रेशियो इन द टर्म्स ऑफ वीपी और वी, वीपी और पॉइजन रेशियो का मेरा क्या आएगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ पॉइजन रेशियो इन द टर्म्स ऑफ वीपी एंड वीएस। ट्राई टू सॉल्व दिस। आपको इस इक्वेशन से आपको बस पॉइजन रेशियो निकालना है। देखता हूँ कौन जल्दी से सॉल्व पाता है इस क्वेश्चन को। तो रीअरेंज करना है इसमें। किन्हीं का इक्वेशन आया इन टर्म्स ऑफ Yes, sir. BPNPS? हाँ, टेल आपका Sir, कितना आ रहा है? VP square plus 2VS square by VP 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 square VP by plus VS। ओके, नहीं VP square by VS square बाय divided by में 2 उसका ब्रैकेट VP square minus VS square। अरे ये नहीं है, ऐसा गलत। VP स्क्वायर बाय, सर आप बताइए, मेरे पता नहीं सही है कि गलत। ये नहीं सर, VP स्क्वायर प्लस VS स्क्वायर ऊपर में, और नीचे में आएगा VP स्क्वायर माइनस VS स्क्वायर बाई 2। VP मैं फोटो खींच के भेजता हूँ। स्क्वायर प्लस VS स्क्वायर। मैं फोटो खींच के भेजता हूँ सर। आपका बहुत हद तक सही आ रहा है, पर एक थोड़ा गलती हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे प्लस होगा। हाँ, you can send me on the WhatsApp. That will be better idea. ये आया। Where you have sent Santosh? हाँ, ग्रुप में। WhatsApp. What? यस सर। But I haven't got. Okay, आपका लगता है WhatsApp स्लो चल रहा है. So write it down. The correct answer will be mu equal to VP by VS का whole square minus 2 divided by VP by VS whole square minus 1 का whole का power minus 1. This is minus 1 half. वही तो आया है मेरा। Then you got the correct answer. VP बाई VS का टर्म मैंने लिखे। हाँ सही है, आपको यदि इस टर्म पे आ रहा है तो सही है। आप VS को एक साथ रेशियो में लिखोगे तो बेटर होता है कभी कभी आंसर निकालना। तो आप इसको याद कर लो।
in the case of mu it's half Vp by Vs का होल स्क्वायर माइनस 2 बाय Vp by Vs का माइनस 1। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है गेट में। मेरा प्लस आ रहा है सर ऊपर। ओके, आप एक बार फिर से चेक कर लो ये प्लस होगा कि माइनस होगा। हाँ हाँ सर, ठीक है सर, सही है आपका, सही है, मेरा गलती है। तो आप क्या करो, आपके एक होमवर्क है, आप जब खुद से इसे रिवीजन करोगे, ट्राई टू सॉल्व Vp by Vp equation relationship between Vp Vs मतलब in for E in terms of Vp Vs for इलास्टिक मॉडल। मतलब जैसे आपने पॉइजन रेशियो के लिए सॉल्व किया, जस्ट आप ये सॉल्व करके देखो कि आपका कितना आता है। द करेक्ट आंसर विल बी, राइट इट डाउन, इट्स रो Vs स्क्वायर by 3 Vp by Vs का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय Vp by Vs का होल स्क्वायर माइनस 1। दिस विल बी द इक्वेशन of E in the terms of Vp Vs। ट्राई टू सॉल्व, आप इसको कोशिश करो खुद से निकालने के लिए, इन द टर्म फॉर E इन द टर्म Vp and Vs। So write a question, try to solve this question. If the Poisson's ratio of a rock equal to 0.27, ठीक है। आपका if the compressive shear velocity are denoted by Vp and Vs, then you have to find what will be Vp by Vs square, Vp by Vs square ratio, that is called compressive and shear wave velocity। sometimes Vp को क्या हम लोग बोलते हैं, आप ये Vp को हम लोग बोलते हैं compressive wave velocity and Vs is a shear wave velocity, क्योंकि shear is a surface wave velocity, मतलब वो surface से होकर निकलता है, तो the nature of this surface wave is shear wave, so sometimes it's called shear wave velocity। The Poisson's ratio is given 0.27 and आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, what will be the ratio of Vp square by Vs square। So this question was asked in GATE, this question was asked in GATE 2005। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे गेट में पूछा जाता है। टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर if the Poisson's ratio is given 0.27 and you have to find out Vp square by Vs square। कितना आंसर आ रहा है?
Naveen? Hello Naveen, are you there in class? Yes, sir. Yes. आपसे सॉल्व हो रही है? Yes, sir. Same answer है. कितना आंसर आ रहा है आपका? आर्यन 3.17, 3.173, नवीन 3.17, नवीन 3.17. What about others? I got four answer only. Was 3.17, Santosh. What about you, Krishnan Pari? So see the previous one. आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, so how much you got? You have to only put in this equation and you will get the correct one. dp by bs स्क्वायर. आपको इस टर्म पे लास्ट जो आपने निकाला था इन द टर्म्स ऑफ dp by bs स्क्वायर को, आप उसको 2 को इधर कर दो और फिर इसको रीअरेंज कर लो, तो आपसे ये आंसर, ये मतलब ये सारा इक्वेशन इधर उधर करके ही बस आपको निकालना है. So the last formula will be 1 minus mu by 1 minus 2 mu. ये आपको इक्वेट सॉल्व करना था फॉर जीपी बाय बी एस का होल स्क्वायर. आप म्यू की जगह 0.27 पुट कर, द करेक्ट आंसर विल बी 3.17, नियरली अबाउट 3.17. So everyone got the correct answer. So try to solve the next question. If write it, what is the s wave velocity, s wave, that means vs velocity in the near earth surface if density of rock equal to 2500 kg per meter cube of sample at time of failure. Velocity, sorry, at time of failure, and shear modulus. What does means by shear modulus? आपसे यदि Vs. कोई बोल दे कि shear modulus will be 10 to the power 10 पास्कल, तो shear modulus का मतलब क्या है? G. It's E, K और G. G. Anyone? Sir, Yes, G. G is the correct option. आपसे जी हाँ, G is the correct option. Okay, good. So E के लिए कभी कभी इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल मॉडुलस. इसको जनरली K इज द वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस, मतलब वॉल्यूमेट्रिक शेयर मॉडुलस, और इसको मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और समथिंग मॉडुलस, और इसमें आपको हो जाता है शेयर मॉडुलस. So if density of rock is given is equal to 2500 kg per meter cube and shear modulus, that means G equal to given 10 to the power 10 Pascal. So you have, आपसे क्या पूछा जा रहा है? Vs.
टेल मी द सॉल्यूशन। आप किस इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे? रूट अंडर जी बाय रो। यस राइट। जी इक्वल टू, मैंने पहले ही बोला था, आपने ई के टर्म पे लिखा था, एंड दिस टर्म कैन आल्सो रिटर्न बाय एज जी बाय रो। आप उसका इस्तेमाल करो। हाउ मच यू गॉट? सर 2000 मीटर्स। हर एक 2000 मीटर पर सेकेंड। ज्योति प्रकाश गॉट 2000 एंड व्हाट अबाउट अदर? ये तो बस पुट करना, आंसर निकल जाएगा 2000। आकाश गौड़ा गॉट द आंसर 2000। आयरन भारती 2, दैट्स 2000। नवीन 2000। मैं चाहता हूँ कि हर कोई खुद से पेन एंड पेपर चलाए, बस देखने से काम नहीं चलेगा। आप जब खुद से बैठ के सॉल्व करते हो तो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में ये रिटेन करता है। तो बस 2000। ओनली 10 to the power 10 by 500। बस ये तो करना था। So the answer will be 2000 meter per second will be the correct option. तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द अनदर क्वेश्चन। What will be the question is, what is the that seismic P wave velocity? Seismic P wave velocity means P wave, that means Vp. Seismic P wave velocity near the earth surface, near the density of the earth rock mass, if density of earth rock mass is equal to 2500 kg meter per cube. Okay, shear modulus is given. Shear modulus is given equal to 10 to the power 10 Pascal, and Poisson's ratio here is also given, that is 0.25. So tell me what is Vp? So which formula we used, Santosh? In this equation, in this question, which equation you will use? If you have noted the formula, then tell me which equation you will use. नहीं पता सर। Vp का इक्वेशन क्या था? न्यू के टर्म पे वीपी का इक्वेशन और जी के टर्म पे अब देख, कहाँ नोट किया सर? यही तो है, मैंने क्या बोला था, ई और जी आर इंटरचेंजेबल है। आप उसके बीच में आपको रिलेशन हाँ, पता है। नहीं तो आप ई को VS जी था। के टर्म पे, जी को ई के टर्म पे, तब VS था तो मतलब VP में भी तो ई है, आप उसमें जी के टर्म पे लिख लो उसको भी। ठीक है सर, ट्राई करते हैं। Naveen got, how much answer you got, Naveen? Twenty-five into 10 to the power 10। Yes, sir. आप फिर से इसको एक बार चेक करो कि 25 into 10 to the power 10 आ रहा है क्या इसका आंसर? आपने किस मेथड का यूज किया है? Sir, G is equal to E by 2 into 1 plus mu. G इक्वल टू 2 by 1 plus में, ठीक है। तो आपने VP के लिए आपने कौन सा इक्वेशन? आर्यन भारती गॉट 3464, आकाश 2449.49।
यस सर, मिस्टेक पता चली। मिस्टेक पता चला गया। आकाश, हेलो आकाश। यस सर। आपने किस कंसेप्ट का यूज किया है? सर पहले मैंने ही पहचाना ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू इक्वल टू 2g, 2g इन ए सर इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। इन ठीक है, ऐसा। इससे ई ठीक है। 1.25 इंटू 10 पावर 10 आया सर। अच्छा, ई का वैल्यू आपने इससे निकाल लिया। ठीक है, ऐसा उसके बाद सर, वो उसके बाद पहला आपको ये फॉर्मूला। इक्वेशन ऑलरेडी पता है। हाँ, पहला फॉर्मूला था 1 माइनस म्यू बाय। तो आप तो सही कंसेप्ट का यूज कर रहे हो, बट यू गॉट द थोड़ा सा आप डाइवर्टेड हो, मतलब सही आंसर से। चेक करो कि कहाँ पे आप गलत हो। मैं आपको बताऊँ आकाश, मैं फिर आपको बताऊंगा कि आप थोड़ा सा गलती कहाँ पे कर रहे हो। सुभाष, इट्स 333.33 एंड कृष्ण पारी गॉट द सेम आंसर। तो सुभाष, आप कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हो, मतलब कि आप क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हो? सर यहाँ पे हम बी एस इक्वल टू रूट अंडर जी बाय रो किए, उसके बाद हम जानते हैं कि बी एस इक्वल टू 0.6 इंटू 50 होता है। तो बी एस हमको यहाँ से मिला, तो बी एस 2000 यहाँ इक्वल टू जीरो वी पॉइंट एस तो निकालने का कोई, आप वी एस निकाल रहे हो इस टर्म पे, तो वीपी निकालना है। तो सर बी एस इक्वल टू 0.6 जीपी होता है ना, तो वहाँ से बी एस मेरा जरूरी है ना निकालना। अच्छा, आप वो इक्वेशन यूज कर लियो क्या? मतलब कि जी। यहाँ पे था एक कि वी एस इज नियरली इक्वल टू 0.6 ऑफ वीपी। यस सर। तो वो क्या है ना, वो नियरली इक्वल टू है, एग्जैक्ट आपको इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। आप वो सब कब यूज कीजिएगा पता है? इन टर्म्स आप, मैं ये बताने वाला था कि जब आपके पास टाइम कम हो, टाइम कॉन्स्टेंट हो, तब उस टाइम पे क्या करना है कि आपको वो शॉर्टकट तरीका याद करना है फॉर रीचिंग द इक्वेशन, कि नियरली 0.6 के करीब होता है, मगर इस केस में आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना है। ये जो आप निकाल रहे हो ना, वी एस इज नियरली इक्वल टू 0.6 ऑफ वीपी, देन वीपी इज इक्वल टू वी एस बाई 0.6। सी नियरली इक्वल टू, आपके पास क्या, सपोज करो कि आप जल्दबाज, मतलब कि गेट के टर्म में क्या होता है कि आप काफ़ी जल्दबाजी में हो, आपको लग रहा है कि अब मेरे पास काफ़ी कम टाइम है और हमको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उस टाइम पे क्या करना है, ये इक्वेशन को यूज कर सकते हो कि वीपी वी एस इज नियरली इक्वल टू 0.6 टाइम ऑफ वीपी, और इसके टर्म पे आप, मतलब कि जो सबसे जो एग्जैक्ट होगा, यदि ऑप्शन इधर उधर, जो सबसे सामने वाला ऑप्शन होगा वो आंसर होगा, यदि ऑप्शन काफ़ी इधर उधर, यदि थोड़ा मिलता ऑप्शन होगा तो इसमें आप फंस जाओगे। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल टाइप में आएगा तो फिर आप पूरा फंस जाओगे, आपका क्वेश्चन आंसर रेंज के बाहर चला जाएगा। ओके सर। तो जब न्यूमेरिकल टाइप में आए तो इस टाइप का कभी गलती मत कीजिएगा, आप रेंज के बाहर चले जाओगे, आंसर 0 अवॉर्डेड। कृष्ण पारिक गॉट 2449। अभी भी तुम थोड़ा सा पीछे है कृष्ण। आर यू मतलब खुद से आप सॉल्व कर रहे हो? हाँ सर। आर्यन भारती, आर्यन भारती, हाँ आर्यन भारती, हाँ आर्यन भारती गॉट द करेक्ट आंसर। तो आपको बस क्या करना था, आप देखिए आकाश, आकाश आपने फिर से ट्राई किया, आपका आंसर कितना आ रहा है? सर कृष्ण सेम आ रहा पारिक है अभी सर। भी आपका 24439, 244 9.49। ऐसा। ऐसा तो नहीं आना चाहिए। आर्यन, सॉरी आर्यन, यस आर्यन भारती, हाउ यू गॉट द आंसर? टेल मी द Sir, I have कंसेप्ट। used the equation VP by VS का whole square is equal to 2 into 1 minus points ratio divided by 1 minus 2 points ratio, सर वो वाला equation यूज किया। अच्छा, वो इक्वेशन यूज कर, ठीक है, आप कोई भी इक्वेशन यूज करो, आपका आंसर सही आएगा, मगर इस टर्म में आपको क्या करना था आकाश सी, आपने क्या किया था, पहले आप ई निकाले, मतलब आपने जी दिया हुआ, फिर आप ई निकाले, फिर ई निकाल के आप इसमें पुट कर देते। एम आई राइट यस आकाश? सर। यस सर। तो उसमें क्या, उसमें गलती क्या हो जाता है आकाश, देखो आप क्या कर रहे हो, आप गेट के टर्म पे, टर्मिनोलॉजी पे, सारे स्टूडेंट्स सुने इससे, आप क्या कर रहे हो, ऑलरेडी एक कैलकुलेशन किए जी के टर्म पे, आपने इतना मेहनत करके जी से यहाँ पे ई निकाला और फिर यहाँ आके पुट कर रहे हो,
और फिर इस 1 प्लस म्यू का टर्म को फिर यहाँ पे बैठा के आप क्या कर रहे हो, डबल कैलकुलेशन कर रहे हो। डबल कैलकुलेशन आप क्या कर सकते थे इस केस में, सी जी इक्वल टू, टेल मी, जी इक्वल टू ई बाय 2 1 प्लस म्यू, ये होता है ना, ये होता है। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे 2 इंटू करना था और 2 ऊपर से डिवाइड करना था, और ये इक्वल टू ई 2 और 1 प्लस म्यू एक साथ को लेकर के आप जी बना देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको डबल कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं था, आप बस एक बार कैलकुलेशन करते और आप यहाँ तक पहुँच जाते। बाकी सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो ऐसे मतलब आपको एग्जामिनेशन के टाइम इस तरह से टाइम बचाना होगा, इस तरह से आपको आपका अप्रोच इस टाइप का होना चाहिए। लगभग स्टूडेंट को आता है, मानते हैं सबको सॉल्यूशन करने आता है, मगर कोई कोई ज़्यादा टाइम लेता है, कोई कोई शॉर्ट। तो आपको अच्छा स्कोर करना है तो ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम आपको बचा के चलना होगा। अब ये क्या इक्वेशन इस फॉर्म में डिड्यूस हो गया, अब सब आपको पता है, अब बस आपको पुट करना है एंड यू विल गॉट द करेक्ट आंसर। गॉट इट सर। ओके, संतोष आपको समझ में आ रही है? हाँ सर। तो इस आप ये सब कुछ कुछ ध्यान रखोगे एग्जाम के टाइम, कैसे टाइम बचाना है। आप कैलकुलेशन को लेंदी मत बनाओ, हमेशा उसको कोशिश करो कि कैसे छोटा रखें। आपका आंसर कितना आ रहा है संतोष? आप निकाल रहा हूँ सर। तो आकाश, आप इस इक्वेशन पे पुट करके देखो आपका आंसर कितना आ रहा है। सर आ रहा है सर 3464। आ रहा है ना? यस सर। 3464। ज्योति, इस बार आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया सॉल्व करने में। जी सर, वही पॉइंट पे थोड़ा अटक गया था सर, आप समझाए तब हो गया सर। ओके, और दुर्गेश आपका क्या हाल है? हेलो दुर्गेश, एंड व्हाट अबाउट यू प्रेम? हाँ, सॉल्व हो रही है प्रेम आपसे? हाँ सर जी सर। तो आपका आंसर आ नहीं रहा है आ सर, रहा है 3464 आ रहा है। हाँ सर। अच्छा सर, एक बात बताइए, यदि हम ई के ई जो जी को ई के टर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद जो पहला फॉर्मूला आप लिखाए थे वीपी का 1 माइनस न्यू ब्रैकेट फिर ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस न्यू ब्रैकेट 1 माइनस 2 न्यू इंटू डेंसिटी से इंटू उसको अप्लाई करेंगे तो उसमें नहीं आएगा आंसर? आप मतलब कौन सा बोल रहे हो? सबसे पहला जो फर्स्ट इक्वेशन वीपी का था, हाँ हाँ। वीपी का वही तो इक्वेशन है, वीपी इक्वल टू अंडर रूट ई 1 माइनस म्यू बाय रो, मतलब डेंसिटी 1 प्लस मतलब पॉइजन से म्यू बाय इंटू 1 माइनस 2 म्यू, यही तो है यहाँ से। हाँ वो तो है, लेकिन ई को फिर ई तो नहीं दिया हुआ था उसको, जी और ई का जो फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू 2g ब्रैकेट 1 प्लस न्यू में उससे जी निकाल लेंगे, हाँ मतलब ई निकाल लेंगे और हाँ, उसको ई का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। मैंने अभी सेम क्वेश्चन वहाँ आपको भी बताया था, आप एब्सेंट थे क्या? हाँ शायद सुने ने, मैं कैलकुलेट करा था उसी से, फिर ध्यान नहीं दे पाया। देखिए आप क्या करते हो, आप जब यहाँ से ई निकालते हो, मतलब जी दिया हुआ, आप यहाँ पे ई निकाले, हम्म। ठीक है, आप इसको यहाँ पे पुट कर रहे हो ई को, ठीक है। हाँ तो आप फिर से कैलकुलेशन को यहाँ पे कर ही रहे हो, मतलब यहाँ से 1 प्लस म्यू को लेकर के यहाँ से इंटू इंटू किए और फिर यहाँ के जाके फिर सेम इक्वेशंस को आप पुट कर रहे हो।
तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया ना। आपने यहाँ कैलकुलेशन के लिए नियरली समझ लीजिए 10 to 20 सेकंड का टाइम दिया, फिर यहाँ जाके ये पार्ट ये पोर्शन आपका फिर 10 सेकंड या 5 सेकंड का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो आप समझ लीजिए आप ई 1 माइनस म्यू और रो 1 प्लस म्यू बाय 1 माइनस 2 म्यू। आपको क्या करना था, 2 को इंटू करना था, 2 इंटू करना था। अब आप इसको यहाँ से क्या कर सकते थे, ई जी इक्वल टू ई बाय 2 1 प्लस म्यू, ई बाय 2 1 प्लस म्यू को यहाँ लेकर के पूरा ये कर देते यहाँ से, और इसका टर्म पे सिर्फ जी लिख देते, तो आपको बस ये टर्म आ जाता है और बस आपको ये कैलकुलेशन करना था। तो आपको इजी बनाना है, हार्ड नहीं। ठीक है सर। ठीक है। So we have completed the dynamic property of rock masses. Okay. So you have looked into this. So if anyone asks you which will be the more dangerous, which have the more devastating effect, it is a P wave or S wave. P wave मैंने देखा था, you have already seen from this formula. S wave है वो 0.6 टाइम, नियरली हाफ टाइम्स हो जाता है P wave का। फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि which have more disastrous effect और which are more dangerous, it is P wave और S wave। जब अर्थक्वेक आता है तो Sir, P S wave wave. ज्यादा डैमेज करता है कि S wave? Why? Sir, because it is on surface, sir, and our structure start from the surface, sir. अंडरलोटिंग टाइप का हो गर- राइट। तो सरफेस वेव में क्या होता है कि जो बॉडी वेव होता है वो थोड़ा नीचे होता है और वो थोड़ा कॉम्प्रेक्शन एंड रेफ्रैक्शन में ट्रेवल करता है, तो वो उतना डैमेजिंग इफेक्ट नहीं दे पाता है। बट सी दिस डायग्राम, दिस वन, तो इसमें क्या होता है आपका कि जब रिपल इफेक्ट आता है, मतलब वो जो सरफेस, एज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट जो भी हम लोग का कंस्ट्रक्शन या जो भी होता है वो आपका सरफेस में होता है। तो इफ सरफेस यदि रिपल करने लगता है, तो इफ वन पोर्शन इज डिस्प्लेस्ड अपवर्ड, देखिए यहाँ पे वेव है, इफ ये सरफेस से कनेक्टेड है तो ये अपर की ओर मूव कर रहा होगा कुछ पोर्शन, और इसका आधा पोर्शन कुछ डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा इन दिस पोर्शन, क्रेस्ट में, ट्रफ में, क्रेस्ट में वो अपवर्ड और ट्रफ में वो डाउनवर्ड कर रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि एक ही पोर्शन, मतलब बिल्डिंग तो एक ही, मतलब एक ही है, और एक सेक्शन यदि उसका अभाव और एक डाउनवर्ड मूव करेगा तो इससे क्या हो जाता है, फ्रैक्चर एंड रैप्चर्स डेवलप कर जाता है। इसी कारण से जो भी आप मतलब कि अर्थक्वेक के टाइम से इसी कारण से आपका जनरली बिल्डिंग्स क्रैक कर जाते हैं और अल्टीमेटली फेल कर जाते हैं। और इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइंस के जो किनारे घर होते हैं, जब वहाँ पे ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, मतलब ओपन कास्ट में जब हैवी ब्लास्टिंग होता है या नॉर्मली ब्लास्टिंग होता है, तो उसमें ये सब उनके नियर बाय एरिया में, उनके नियर बाय लिवलीहुड में ये सब केसेस देखा गया है। ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा द एस पे विल बी द हैव मोर डेंजरस इफेक्ट देन P wave. Okay. So there are the we have already talked about this. S wave is also the various type. S wave का various type है. These are commonly known as Rayleigh wave, love wave, Stoney wave and guided wave. तो रेले वेव के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से लव वेव, स्टोनली वेव और गाइडेड वेव का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो राइट इट फॉर द रेले वेव, बस आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेना है। राइट इट कि रेले वेव, जस्ट राइट इट नेम आफ्टर द जॉन विलियम स्टट एंड लॉर्ड रेले। Occurs near the interface and the free surface of the rock, just like a wave rolls across a lake or the ocean. I have already told roll, जब ये जो अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग का कंसेप्ट है, ये जनरली आपका ओशियनिक कंसेप्ट है। ओशियनोग्राफी में इसको आप काफ़ी सुनते हैं, अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग फॉर द वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट के लिए। तो सेम इसी टाइप में यहाँ भी होता है। तो जनरली दे आर इन द एलिप्टिकल इन मोशन, so in vertical direction between body wave and surface wave.
तो रेलेवे वेलोसिटी VR इक्वल टू नियरली 0.919 ऑफ VS। ये आप बस लिख लो, आप कभी भी कंफ्यूज हो गए तो आप नियर बाय निकाल सकते हो इससे, 0.91 टाइम्स ऑफ VS। So this is the pictorial representation of Rayleigh wave. T is the time, 1 second, 2 second and 3 second. Direction of the propagation of the wave, it's like this, surface body wave के बीच में आपका existing. In the previous class, we have already talked about the electrical properties of the rock masses, about the dielectric behavior. तो ये सब बस आप एक बार theoretically देख लो, मैं आपको PPT शेयर कर दूंगा कि what are the physical significance of electrical property. It's generally used for the prospecting and surveying purpose में हम लोग electrical properties of rock masses और anomalies, generally आप एक term सुनते होंगे anomalies. Have you heard this term anomaly? Yes, sir. So what do you mean by anomaly? Don't know, sir. हाँ, anomaly मतलब उसमें कुछ anomaly is the term which is generally used कि जो what आपने expectation क्या किया था, मतलब which are generally मतलब जो जनरल एग्जिस्टेंस होना चाहिए और उसमें आपको है ना कुछ अलग सा, मतलब एक होता है ना विचित्र टाइप का आपको कुछ एग्जिस्टेंस मिला जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, उसका एग्जिस्टेंस वहाँ नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ डिस्टर्बेंस टाइप में, तो दीज आर कॉल्ड एनोमली. These have the nature which have the nature is very weird than other weird than the other surroundings, मतलब weird than its nearby surrounding, तो उसको एनोमली बोलते हैं. तो इसी कारण ये सब का यूज काफ़ी आपका सर्विंग, जब आप सर्विंग एंड प्रोस्पेक्टिंग पढ़ोगे तो उसमें ये एनोमलीज का काफ़ी यूज किया जाता है. इट्स मैग्नेटिक एनोमली, समटाइम्स थर्मल एनोमली और इलेक्ट्रिकल एनोमली. तो जैसे आपका हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनोमली, जब आप डाइलेक्ट्रिक करंट और डायपोलिक जब करंट पास किया जाता है, तो इफ एनी सब्सटेंस ऑफ द रॉक विच हैव द इलेक्ट्रिकल सो द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर एंड मे बी कन्वर्ट इनटू डाइलेक्ट्रिक, तो वहाँ पे क्या होता है अचानक से मतलब कि अजब टाइप का, मतलब कि उसका वेव और फ्रीक्वेंसी बिहेव करने लगता है. तो हम लोग को ये पता चल जाता है कि इस अर्थ सरफेस के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस है, दे आर द कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड दे आर मस्ट बी द मेटल. तो कितना लार्ज एरिया में, उसका एक्सटेंट क्या, उसका थिकनेस क्या, ये सब सारा मतलब हम लोग फर्स्ट फेज ऑफ प्राइमरी एक्सप्लोरेशन में ये सब पता करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. और भी बहुत सारा फील्ड में इसका हम लोग यूज करते हैं जनरली. थर्मल प्रॉपर्टी, तो थर्मल प्रॉपर्टीज आर द मोर इम्पोर्टेंट टू द इंजीनियर स्पेशली इन द टनल्स एंड अंडरग्राउंड ओपनिंग फॉर एस्टिमेटिंग द जियोथर्मल ग्रेडियंट. तो जियोथर्मल ग्रेडियंट ये आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा व्हेन यू गो फॉर द स्टडी ऑफ अंडरग्राउंड रॉक माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग. आप जब भी अंडरग्राउंड माइनिंग पढ़ेंगे, आइदर इट इज अ मेटल माइंस और कोल माइंस, वहाँ पे जियोथर्मल ग्रेडियंट का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है. ऑन द डिजाइनिंग ऑफ जियोथर्मल ग्रेडियंट का एप्लीकेशन आपका हो जाता है ऑन द डिजाइनिंग ऑफ पिलर, स्पॉन्टेनियस हीटिंग. स्पॉन्टेनियस हीटिंग से डिजाइनिंग ऑफ पिलर्स आपका डिपेंड करता है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पिलर्स, और ये सब रेट ऑफ एक्सप्लोरेशन, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, ये सारा थर्मल प्रॉपर्टीज पे भी वहाँ पे करता है जियोथर्मल ग्रेडियंट. इट अफेक्ट द माइंस इन्वायरमेंटल कंडीशन. अब जब माइन इन्वायरमेंट कंडीशन में पढ़ोगे, जब पढ़ाया जाएगा तब ये मैं इस पर डिटेल में बात करूँगा जियोथर्मल ग्रेडियंट पे. So this property is useful to assess the suitability and the dimension of stones used in the severe environment and the severe environments and temperature extremes. तो अभी का केस में आप बहुत बार सुने होंगे एयर कंडीशनिंग लगाने का बात होता है. बहुत सारे माइंस में एयर कंडीशनिंग का होता है. तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स होता है वो होता है जियोथर्मल ग्रेडियंट और द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक. जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो और जितना मतलब कि आप डेप्थ में अप्रोच करते हो, जियोथर्मल ग्रेडियंट बढ़ता रहता है. और हर एक मतलब डिफरेंट लोकेशन का अपना डिफरेंट जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है. वो डिपेंड करता है आपका कि
उसका एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन वहाँ पे क्या हुआ होगा, या व्हाट आर द नियर बाय और द सराउंडिंग कंडीशन, व्हाट आर द मैग्नेटिक बिहेवियर, टेक्टोनिक कंडीशन, ये सब काफ़ी होता है जो वहाँ का जियोथर्मल ग्रेडियंट को करता है. दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर. एक्चुअली अभी तक रॉक साइंटिस्ट ये पता नहीं कर पाए, पता एग्जैक्टली वो ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि व्हाट आर द बिहेवियर ऑफ जियोथर्मल ग्रेडियंट. तो swelling is generally defined as the increase in the volume of rock, the volume of mass due to the suction of the water or due to the contact. see आप swelling का अपने डे टू डे लाइफ में आप देखना चाहते हो तो just go and dig a pitch. आप उसमें एक गड्ढा करो और फिर से क्या करो कि आप इस जो मट्टी आपका निकला, जो भी मट्टी आपका निकला, आप उसको फिर से इसी में डालने की कोशिश करो. इज इट एग्जैक्टली जैसा सरफेस था वैसा फिर से बन जाएगा वो क्या? इज इट सो? नो. वो क्या होगा कि थोड़ा सा इस टाइप का हो जाएगा. दिस फैक्टर इज कॉल्ड स्वेलिंग फैक्टर. जस्ट राइट इट डाउन. स्वेलिंग रिलेटेड टू द अनकन्फाइंड compression of the rock with the increased value of the unconfined compressive strength and tendency of the swelling reduce. So anisotropic I have already talked, and then this will be the last topic. वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट. आप स्वेलिंग फैक्टर्स को है ना, आप लोडिंग के कंडीशन पे जब आप माइन मशीनरी पढ़ोगे तो उसमें जब डंपर लोडिंग पढ़वाया जाएगा ना, उस कंडीशन पे आपको स्वेलिंग फैक्टर पे एक इंपॉर्टेंट होता है स्वेलिंग फैक्टर, बकेट फैक्टर, उसमें आपको इस पर डिटेल में बताया जाएगा. हेलो सर कन्फाइंड इक्विफर का जो नॉमेंक्लेचर था उसको थोड़ा दिखाइएगा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट में. किस कर किस कन्फाइंड इक्विफर का जो नॉमेंक्लेचर था ना, confined aquifers पे confined this one. यस सर. नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था रेशियो. सर इसमें वही क्वेश्चन नहीं स्क्रीनशॉट मारता है, नहीं लिखा है. अच्छा क्वेश्चन सेकंड सर क्वेश्चन रेशियो पॉइजन रेशियो और कौन सा क्वेश्चन था? वो आपका जस्ट रिवीजन के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए था. इतना ये सब क्वेश्चन से सारा कुछ आप नहीं हो सकता. आप है ना कोई स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करके आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा. आप एक बार मतलब एग्जाम्पलर क्वेश्चन टाइप का आप ये सब रख सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन को जनरली गेट में कवर किया जाता है. ये क्वेश्चन क्या था? हाँ है डेटा हम कर लेना था. दिस इज वन क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. इधर तो हो गया. Okay. Then if anyone has any question, hello. So if no one has any question, then we will sum up the class today. So those students who have any confusion, ask the question. Otherwise, we can leave the class. ओके टेल मी संतोष, आपका क्वेश्चन क्या था? जो पैरेलल कनेक्शन जो बता रहे थे ना, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन परमेबिलिटी. अच्छा ओके. So those students who want to listen, then he